हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सोचो भूख तो नहीं लगा ना? हरि बोल। हम लोग पहले राधा माधव गाएंगे। राधा माधव हो गया? हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama
हरिनाम संकीर्तन की श्रील गोपाल की श्री गुरु महाराज की जय गौर गोविंद। हरे कृष्णा। तो हमारा साप्ताहिक जो प्रोग्राम है कार्य में आप लोगों का राधा माधव नाम हट्ट से शामिल है। तो राधा माधव नाम हट्ट का अथॉरिटी से जो मेरा को जो सेवा मिला, तो इस वाले की यह सेवा बहुत ही कठिन सेवा है। ये वैष्णव देव का सेवा है। मेरा पास इतना ज्ञान भी नहीं है तो कुछ आप लोग को बोलना है। हमारा जो आरसा जो लोग जो टीका देते जिया वो बात जो लिखे जिया और हमारा सीनियर डिवोटी मुंह से जो सुना, हम कोशिश करेंगे इसमें कुछ बोलना के लिए। तो हमारा बोलना में इतना जगता नहीं हो तो हमारा बोलना में कुछ गलती हो जाए, आप लोगों का छोटा भाई समझते, अपना बेटा समझते, मेरा को क्षमा करना और मेरा को पूरा आशीर्वाद करना। हरे कृष्ण। तो पहला हम मंडला शरण करेंगे, इसके बाद भागवतम से एक श्लोक पाठ करेंगे। ओम ज्ञानंतिमरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामहं तदादेशपतितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च
শ্রীরূপম সদ্রজাতং সহগণা রঘুনাথিতং তং সজীবন সাধুতং সাবধূতং পরজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদায়ন সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখাতানি চ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীশা গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশূলানি সুতে দেবী প্রণমামি হরে প্রিয় পাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনৈব বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণী জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শিবভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ভাসো ততো জয়ে মুদীরয়ে নাষ্টপায়সু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতং সেবায় ভাগবতমে উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভগতে নষ্টকে কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ যশ প্রসাদ ভগবৎ প্রসাদ যশ প্রসাদ নদভূতভূতি জ্ঞানস্তুবংস্তেষ যশাস্ত্রে সন্দম বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 30 नंबर 10 नंबर श्लोक है। तो मीज से मैं एक श्लोक पाठ करेंगे। और ते हो आपा बोलिए हम और ते हो आपा दीते हो गर्भ हिंसाय ईतो ततः च तानो पुष्पशान्ति जशमय पुषेण शेषभूत जाति अदशयम अर्थ है आप दीते है गुरुवा
হিংসায় ইথ তত চয়তান শান্তিয়তে জয়সাম কুশনায় শেষ ভূতয় জাতি অদয় স্বয়ং। অর্থে ধন সম্পদের দ্বারা আপাদিত অর্জিত গৌরব মহান হিংসায় হিংসার দ্বারা ইতঃ তহ সর্বত্র চ এবং ধন তাদের অর্থাৎ পরিবারদের সদস্যদের শান্তি পালন করে যেসম যাদের পোষণ পালন পোষণের ফলে শেষ অবশিষ্ট ভূত ভোজন জাতি জাত অদ সিন্নয় বিমুখী স্বয়ং স্বয়ং। অনুবাদ করেছেন অভয় চন্দ্রবিন্দু ভট্টি বেদান্ত स्वामी शिल प्रभुपाद जी। तो ऑलमोस्ट बंगाली ज्यादा है ना, फिक्स वाली जो बांग्ला है हम हिंदी में इफेक्ट करेंगे। तो अनुवाद किया प्रभुपाद ने, हमारा साथ साथ आप लोग बोलिए। সে ইতস্ত হিংসা আচরণ করে, ধন সম্পদ অর্জন করে এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সে অর্থের দ্বারা কেনা খাদ্যর স্বল্প মাত্র অংশই আহার করে এবং এভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল তাদের জন্য সে नरकगामी হয়। तो तात्पर्य बोलेंगे, इसको बात हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदी तो मेरा तो इतना अच्छा नहीं आता है। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যার জন্য করি চুরি সে বলে চোর, যার দর চুরি করি সে বলে চোর। তো পরিবারের যে সমস্ত সদস্যদের জন্য বিষয়ে আসক্ত মানুষ নানাবিধ পাপ কর্মে রত হয়ে তারা যখন সন্তুষ্ট হয় না, মোহের বশে বিষয়ে আসক্ত মানুষ পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের সেবা করে এবং তাদের সেবা করার ফলে তাদের জীবনের নারকীয় অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। যেমন একটি চোর তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য চুরি করে এবং সে যখন ধরা পড়ে তখন তাকে কারাগারে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় অস্তিত্বে এবং জড় জাগতিক সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের এটি হচ্ছে সারমর্ম। পরিবারের প্রতিটি আসক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সর্বদা চলে বলে কৌশলে ধন সংগ্রহ গ্রহের চেষ্টা ব্যস্ত থাকে। সে নিজে কিন্তু এই প্রকার পাপ কর্ম ব্যতীত যতটুকু বোধ করতে পারত তার থেকে বেশি কিছু বোধ করতে পারে না। একটি মানুষ যে দিনে এক পোয়া খাবার খায় কিন্তু তাকে হয়তো একটি বিরাট পরিবারের ভরণ পোষণ করতে হয় এবং পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য যে কোনো উপায়ে হোক না কেন অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু সে নিজে তার আহারের ক্ষমতার অতিরিক্ত আর কিছু পায় না এবং অনেক সময় তাকে তার পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের ভুক্তা বিশিষ্ট আহার করতে হয়। অন্যভাবে ধন সংগ্রহ করার সত্ত্বেও সে নিজে তার জীবন উপভোগ করতে পারে না। এইটিকে বলা হয় মায়ার আবরণাত্মক শক্তি। সমাজ, দেশ এবং জাতির প্রতি ভ্রান্ত সেবার পন্থাটি সর্বত্র এই প্রকার এবং তা বড় বড় রাষ্ট্র নেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্র নেতা যে তার দেশ সেবার ফলে অত্যন্ত মহৎ হয়েছে
সেবার ভুলের জন্য তাকে তার দেশবাসীর হাতে নিহত হতে হয়। অর্থাৎ তার ভ্রান্ত সেবার দ্বারা কেউ তার আশ্রিতদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, যদিও সেই সেবা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা সেবা করাই হচ্ছে স্বরূপগত বৃত্তি। জীব তার স্বরূপে পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু সে পরম পুরুষের সেবা করার কথা ভুলে গিয়ে সে অন্যদের সেবায় ব্রতী হয়, তাকে বলা হয় মায়া। অন্যদের সেবা করে যে মনে করে যে সে হচ্ছে প্রভু, পরিবারের কর্তা, মনে করে যে সে পরিবারকে প্রভু, অথবা রাষ্ট্রনেতা মনে করে যে সে রাষ্ট্রের প্রভু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দাসত্ব করছে, এবং এভাবে মায়ার দাসত্ব করার ফলে তারা ধীরে ধীরে নরগামী হচ্ছে। অতএব প্রকৃতস্থ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে তার জীবন, তার সমস্ত সম্পদ, তার সমস্ত বুদ্ধি এবং তার সমস্ত কথা বলার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা যুক্ত হওয়া উচিত। আশা করি সবাই বুঝে গেছেন। হরি বল। তো চৈতন্য চৈতন্য ভগবান বলা, কৃষ্ণ বলে যে জীব ভূতে বাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে চাপড়াইয়া ধরে। जो कृष्ण के भूले जो भूत का जो वांछन करता है, जो भूत करता है, जो निकट में जो माया होता है, माया उसको चपटा भी धरता है। तो एक्चुअली की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी भरा था, प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का पानी है, ये कोई अपवित्र पानी नहीं है, मंदिर का पानी है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली ये जो श्लोक जो बोला था, ये हमारा जो हम लोग जो प्रवास में रह रहे ना, ये प्रवासी का जिंदगी में यह आना वाला है। शायद किसी को आ गया, शायद किसी को नहीं आ जाता, वो आने वाला है। ऐसा प्रवासी नहीं है, सबका लाइफ में ये आएगा। तब प्रवासी जीवन जिंदगी के लिए ज्यादा होता है, फुल होता है। क्योंकि इधर बोला बांग्ला में क्या प्रभाव बोला कि हम जिनके लिए चोरी करता है वो भी चोर बोलता है, और जिसका घर चोरी किया, जिसको शीश चोरी किया, वो भी हम तो चोर बोलता है। मतलब मैं चोर है, लेकिन हम इधर बोले थे हम परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए रात दिन किसी ने चोरी करते, चीटिंग करते, जैसा भी है, पैसा कमा के हम क्या करते, घर को भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन मेरा पाप जो होता है, मेरा पाप का भागीदार कोई नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्पल है रामायण में जो नंद रत्नाकर जो दस्यु था, रत्नाकर दस्यु जब क्या करता था, बहुत बड़ा दस्यु था, डाकू था, जिसको देखता है इससे डाकू करके लेता है। तो एक दिन जब नारद मुनि गया था, तो नारद मुनि को पकड़ा लिया, क्या है निकलो, चाकू पकड़ाया। तो नारद मुनि बोलता है, तो नारद मुनि साधु है, तो बोलता है ठीक है, मुश्किल नहीं, मेरा बात जो है देंगे, लेकिन एक बात मेरा को पहले बताना, आप जो ये डाकू करके सामान लेके क्या करता है। तो उन्होंने बोला कि रत्नाकर दस्यु बोला, क्या हम तो ये डाकू करके हमारा परिवार को चलाता है। तो ठीक है, परिवार तो चलाता, अच्छा बात है, आप परिवार से जाके पूछो आपका पाप का भागीदार होने की नहीं है। तो पहला बीवी का पास गया, बीवी बोल रहे आप मेरा तो शादी किया, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, मेरा तो भरण पोषण करना है। आप चोरी करके ले जा रहे नहीं, डाकू करके ले जा रहे नहीं, कमा के ले जा रहे, ये देखना का हमारा जरूरी नहीं है। आपका दायित्व, आपका कर्तव्य आप पालन करें। तो अभी बेटा को पास दिया, बेटा बोलता है आप बाबा है, पिता है, पिताजी आपका कर्तव्य है, हमको चलाना है, आप किधर से चलाना है मेरा तो पता नहीं है, लेकिन पाप का बागी मैं नहीं होंगी। तो माँ बाप को भी ऐसा पूछा, पिता माता को पूछा, वो भी बोलता सही है,
मैं बेटा क्यों जन्म दिया? बेटा तो कर्तव्य है, बड़ा भोजन करना है, लेकिन पाप का भाग किसी ने नहीं लेगा। तो वर्षा शास्त्र में भी बोला ऐसा है। तो नारद मुनि के पास आज आके फिर वापस आया, बोला क्या बोला था? तो नारद मुनि तो रत्नाकर दस्यु को पूछा था क्या बोला, तो बोल रहे थी मेरा जो पाप किया ये पाप का भाग किसी ने नहीं लेना है। तो अभी देखो हम तो इसलिए बोले कि हम जिनके लिए चोरी कर रहे हैं वो भी चोर बोलता है, जिससे घर चोरी करता है वो भी चोर है। तो हम इसका मतलब है हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म का जो फल जो है हमको भी भुगतना पड़ेगा। हमारा कर्म फल किसी ने नहीं भोगेगा। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, रात दिन कठोर परिश्रम कर रहे, दिन रात काम करके करके जहाँ पैसा कमा रहे। तो इधर प्रभुपाद लिखा है जो हम 250 ग्राम खाता है, एक आदमी 2 रोटी खा सकता, और चावल खाएगा तो 250 ग्राम खाएगा, एक फुआ खाएगा है, ऐसा बोलता है। लेकिन हम विशाल बहुत संपत्ति अर्जन कर रहे। जानते पास एक बंगला है तो दूसरा बंगला बनाना के रेडी होता है, 2 लाख का दाम 4 लाख कैसे करेंगे? ऐसे करते हमारा जिंदगी हम इधर गुजार दे रहे। तो मेरा लाइफ क्या है तो मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी बहुत गुजारने का बाद भी हम फैमिली तो किसी को खुश नहीं कर पाता है, ऐसा हो रहा है ना। क्योंकि ये इंडिया से भी कमती हो जाता, बांग्लादेश का आदमी लोग को प्रवासी जिंदगी को पता है। क्योंकि हम लोग जब मुल्क जाता है हम इतना सामान खरीद करता है हमारा रिश्तेदार के लिए, सबके लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, लेकिन खुद के लिए तो कुछ नहीं करता है। फिर भी लेके जाने का बाद भी हम क्या होता है उधर नाराज हो जाता है। किसी ने तो खुशी नहीं होता, किसी बोलते मेरा लिए लेके नहीं आया, जो किसी के लिए ले जाए बोलते मेरा उसको पसंद नहीं होता है। ऐसा होता है आप लोग के पास। तो ऐसा जिंदगी हमारा जा रहा है, लेकिन मेरा जो साई का जिंदगी क्या है तो पता नहीं है। तो इधर बोला प्रभुपाद जो घर चलाता है तो वो सोचता कि वो घर का बहू है, घर का करता है। जो ऐसा कोई मूल्य गांव चलाता है, जो मेंबर बनता बांग्ला में तो क्या काउंसिलर, जो काउंसिलर है वो सोचता है वो भी सेवा करता है। तो जो देश चलाता है वो भी देश समाज वो भी सेवा करता है। लेकिन देश चलाना वाला में ऐसे क्या होता है, देश का जो नागरिक है, अवाम है, उनके पास उसका मृत्यु होता है। ऐसा होता है ना, नेताजी को मार देता है ना, देश चलाना वाला भी उनका हाथ में मरता है। उधर भी जो आश्रित वाला उनका आश्रय में जो रहता है वो लोग भी उनका पास नाराज हो जाता है। मतलब उनका जो जितना लेना है उसको बराबर नहीं मिलता है तो वो भी नाराज हो जाता है। तो ऐसा ही है, हम छोटा से बड़ा था। जो घर चलाना वाला वो भी एक देश से भी बड़ा है, जो परिवार जो मेंटेन करता है उतना बड़ा बड़ा तो चाहता है। जैसा एक वो क्या बोलता है इसको, जो घर चलाना वाला घर का प्रभु है, जो काउंसिलर है वो गांव का प्रभु है, जो देश चला रहे वो देश का प्रभु है। अलग 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 बड़ा बड़ा है। लेकिन ये जो सेवा करता है इस सेवा में हमारा कुछ लाभ नहीं हो रहा है। हमारा दायित्व हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो असली जो दायित्व है यह हम भूल गया, हम पूरा भूल गया। हम ऐसा दायित्व चलाते जा रहे। जब मेरा जो बुढ़ा हो जाएगा, तो जब मैं अवसर हो जाएगा तो हमसे क्या करेगा, घर से लाभ मार के निकलेगा। हम तो पूरा जिंदगी दे रहे फैमिली के लिए, घर वाला के लिए, सबके लिए, अपना के लिए क्या किया यहां कभी भी नहीं सोचता है। ऐसा हो रहा है ना। अभी देखो कितना वृद्धाश्रम चालू कर दिया। क्यों? आपका अभी मानता है जितना तक आप पैसा देगा इतना तक आपका इज्जत करेगा, आपका बात नहीं चलेगा। आप इतना दिन तक प्रभु है, आपका कमाई बंद हो गया,
आप प्रभु नहीं, आप दास बन जाइए। दास भी नहीं है करता, अभी इस श्लोक में बता रहा तो टूटता है। ये श्लोक आप पढ़ जाए, इसलिए आप ये से बोल रहे। अभी जो हमारा चल रहे भागवतम सीरियल में आ रहे, हमारा कौन सा मर्म क्या करना है बोलता है। जो एक कुत्ता होता है, कुत्ते का जितना इज्जत रहता है लेकिन आपका इज्जत नहीं रहता है। क्यों? जब उम्र हो जाता है, बहुत उम्र लेता है, एक कुत्ता क्या करता है, जब तक सामने ऐसा पा दे बैठ जाता है ना, खप मेरा जो गिलास से खाना देगा करता, हम खाएंगे। तो घर में जो एक उम्र वाला होता, साहब आप लोग को पता है, दीदा दीदी दादी दादी दादा दादी जो होता है, वो बुढ़ा होता तो क्या करता है, वो बाबा माँ जो बुढ़ा होता घर में एक जगह में बैठ जाता है, कब टाइम होगा, कब खाना देगा, तब खाएगा। उसके बाद कोई सुनता है, अच्छा कुछ बोलेगा तो बोलेगा क्या है, बूढ़ी बुढ़िया बुढ़ा कब मरेगा, क्यों नहीं मर रहे। ऐसा होता है ना, ना मर रहे फिर भी चुस्ता है, चाहता है उसको जबरदस्ती में मारना डालिए। तो आज उनका लिए हो रहे क्या, कल मेरा बारे में नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग बुढ़ा हो जाना एक दिन, नहीं हमारा जुबानी ऐसा रह जाएगा। तो प्रकृति क्या है यह हमको मालूम नहीं है, प्रकृति क्या है मालूम नहीं, तो इसलिए मुश्किल है। भगवद गीता में भगवान ने श्लोक बोला था कि मामवंश जीवलोक जीवभूत सनातनी, मामवंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनिष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि हर्षति। तो हमारा जो छह इंद्रिय है, हम छह इंद्रियों में फंसा हुआ है। हम इंद्रिय को भूत करने के लिए हमारा जो जोवन, हमारा सब कुछ मैं उसमें मिटा दिया। हम इतना फंसा हुआ है इंद्रिय तृप्ति में भूत करने के लिए। इंद्रिय शास्त्र भगवान बोला वो मेरा से उत्पन्न हुआ, मेरा से उत्पन्न हो, षष्ठ इंद्रिय में वो फंसा हुआ है, प्राकृतिक में फंसा हुआ है। लेकिन भगवान को जो असली जो कर्तव्य है वो भूल दिया, क्या करना चाहिए भूल दिया। तो एक बांग्ला में एक भजन भी था, शिशुकाल जेलो हासिते चलिते যৌবন গেল রসে, বৃদ্ধকাল গেল ভাবিতে চিনিতে, গোড়াদ ন বুঝিলে রে মনवा, এই সংসার সবই झूठा। जो हम जो शिशुकाल हम हंसते चले तो हमारा लाइफ कर दिया, जौवन में जब आया था मैं ऐश करते करते हमारा लाइफ मिटा दिया। जब बूढ़ा आ गया हम अभी बाप रे चिंतन कर रहे, उधर मार भी कर रहे तब चिंतन भी कर रहे, क्यों तू नहीं किया। तो ऐसा लाइफ हमारा लाइफ में आएगा, तब कोई लाभ नहीं होगा। जब बाबी जी चिंता करे जी गौरांग ना बुझिले रे मनवा, ये संसार सब झूठा, तब मेरा तो पता चलता है ये संसार पूरा झूठा है, ये संसार मेरा लिए नहीं हो। कौन बोल सकता आना जन्म लेने के टाइम हम लोग साथ में ले जाया इतना संपत्ति तो ले जाया था, जाना का टाइम ये जाएगा हमारा साथ, कोई ले जाएगा नहीं जाएगा। तो हम फंसा हुआ है, इसलिए बोला हम जो षष्ठ इंद्रिय में फंसा हुआ है, हम भगवान से सृष्टि होया लेकिन हम तो पता नहीं है हम क्या करना चाहिए। तो असली ज्ञान क्या है, तो प्रभुपाद इधर बोला हमारा जो भावना क्या होना चाहिए, हमारा जितना धन है जितना मन है सब कुछ हम कृष्ण में ला जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में ला जाना चाहिए। कृष्ण के भक्ति जब बगैर कुछ नहीं है, तो हम कृष्ण भक्ति में कैसे लगा सकता, कृष्ण के कैसे मारो तो मालूम होगा। जो कृष्ण जो भगवान है तो एक साइड तरीके से रास्ता में जाना पड़ेगा ना। तो हम ज्ञान किस से लेना है, किस के पास जाएगा तो हम ज्ञान मिलेगा। तो दुकानदार के पास जाएगा, से दुकानदार हमको ज्ञान देगा, तुम कृष्ण के पास जाओ कृष्ण देगा। तो डॉक्टर के पास जाएगा, से ज्ञान डॉक्टर देगा, नहीं तो इंजीनियर के पास जाएगा तो इंजीनियर ज्ञान देगा, देगा ना इंजीनियर है, डॉक्टर देगा ना। तुम कृष्ण के पास जो मेरे पास नहीं आओ, नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान इस वाली गीता में
गीता में भगवान अर्जुन को बोल दिया तद्विद्धि परिपाटन पूर्वेशन सेवाया उपदित ज्ञान तत्व नीन सत्य दार्शनिक बोलता तुम जो तत्ववेत्ता गुरु है, जो तत्ववेत्ता जो भगवत संबंध जानता है, इसके पास जाओ, इसके पास जाके विनम्र नम्रित भाव उनको प्रश्न पूछो। कौन बोला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला जो तद्विद्धि जो हमारा जो भगवत तत्व जानता है ऐसा व्यक्ति के पास जाके तुम्हारा हृदय से विनम्र से प्रश्न पूछो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाना है, मैं कार्य क्या है, मैं करना क्या है। तो हम किसके पास जा रहे हैं? अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम जो असली जो हमारा जो ज्ञान है, जो तत्वविधि, जो ज्ञानी वाला के पास हम लोग नहीं जा रहे। हम जा रहे किधर है? जिधर आजकल तो बहुत ही गुरु है, बहुत बिजनेसमैन है, गुरु का बिजनेस है, सस्ता गुरु है। हम ऐसा गुरु के पास जाके ढूंढ रहे। हमको जो क्या बोलता है इसको, नौका तो किश्ती बोलता है ना, नौका भी बोलता है, बोट बोलो। आज जे बोट में मैं उठेंगी समुद्र पार होने के लिए, आज हम तो बोट चलाना नहीं आएगा तो क्या होगा? वो भी डूबेगा, मेरा तो भी डूबाएगा। तो ऐसा गुरु तो हम तो छोड़ना चाहिए। जैसे हम तो प्रमाण दिया तूने, बोली महाराज का गुरु जो तो एक अंधा था, एक आज अंधा कर दिया। क्यों? वो अंधा है, उसको वो गुरु हो सकता, लेकिन उनको पास भगवान का ज्ञान नहीं था। जो भगवान आया ब्राह्मण रूप लेके दान करने के लिए, वो बोलता नहीं दो, तुम्हारा पूरा संपत्ति वो हरण कर लेगा। तो वो बोलता है ले जा तो क्या मुश्किल है, हमारा कौन सा रोल है? धन तो भगवान उनका है ना, उनका धन मैं उनका देना है। अरे भगवान का सही गुरु चढ़ने के लिए, अरे भगवान का भक्ति करने के लिए कैसे ऐसा गुरु बाधा देगा तो उसको क्या करना, त्याग करना चाहिए। तो इसलिए उनका एक अंधा कर दिया, बताइए अंधा है। अरे गुरु अंधा होगा तो हम तो कैसे पार कराएगा? हम भी अंधा, गुरु अंधा, दोनों अंधा मिलके कहा जाएगा? तो इसलिए यह हमारा ज्ञान का बहुत प्रॉब्लम है। हमको पता नहीं है, जब हम भक्ति कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, हम प्रोग्राम में बहुत कुछ पाप कार्य कर रहे हैं। मेरा तो पता नहीं है मैं क्या करना चाहिए। लेकिन दुख का बात है, हम गीता मानता है, हम भगवान को नहीं मानता है। गीता पढ़ता है, सब कुछ करता है, मानता ही नहीं है, करता ही दूसरा है। बहुत बड़ा बड़ा साइन बोर्ड लगा दिया, गीता संघ, गीता स्कूल, गीता कॉलेज, अंदर में जाके देखो क्या हो रही, करना क्या है। तो हम भक्ति से ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा पाप कर ले रहे, हम लाइफ भी दे रहे, हम देख रहे आजकल क्या हो रही है। ये गीता मतलब, गीता है हमारा पवित्र है, गीता संघ मतलब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? गीता इसको तोला, हम गीता संघ तोला, गीता इसको तोला, गीता कॉलेज तोला, इसमें होना क्या चाहिए? लेकिन हम नाम ऐसे काम कर रहे दूसरा है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, पाप है। तो हमसे इससे निकलना चाहिए, इससे निकलना चाहिए हमको। लेकिन हम जगत को क्या शिक्षा दे रहे? हम क्या शिक्षा दे रहे जगत को? मैं जो सिखाएंगे, मेरा पीछे वाला जो आएगा वो सीखेगा। समाज को मैं कहा लेके जा रहे? भगवान शास्त्र में क्या बोला, लेकिन गीता में क्या बोला? गीता बोले भगवान बोला ना, मन माना बाबा मत भक्त मत जाची मम नमस्कुरु माम एवो जैसासी, तुम मेरा तो पूजा करो,
मेरा तो पूजा करो, मेरा तो नमस्कार करो, मेरा तो नमस्कार करो। सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम भजो। माम एक है और द्वितीय ने है। अहम तम सर्व पापैभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो और द्वितीय नहीं है। अभी हम कर रहे क्या? भगवान तो बैठे या भगवान के सामने हम दूसरा कर रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे। अभी श्रावण महीना चल रहे, हम बहुत लाइव में, बहुत फेसबुक में वीडियो आ रहे, अश्लील गाना से घुसा देते, देविता जो सुलौते गा रहे, लाइव भी दे रहे, सापुरी का नाच भी, जहाज भी मार रहे भगवान के सामने। गलत है ना? हम कौन सा जगत में रह रहे? अपराध है, अपराध है, पता नहीं हो रहे अभी तक आप लोगों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज तो ले जाना चाहिए। हम जो जगह में टाइम देंगे उसमें हमें कुछ मिलना पड़ेगा। आज उसमें मेरा कुछ फायदे नहीं होगा, कोई फायदे नहीं। समय बाबा ही केवलम। हमारा समय तो हम नष्ट कर रहे, लेकिन वो जब बोला ना था, जब बुढ़ा आएगा तो पता चलेगा, वो जो फायदे नहीं है। हम समय बता हमारा नष्ट कर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कमती है। ये जो कलयुग में हमारा 100 साल बोलता है, 100 साल नहीं बचते हम लोग। अब 50 साल के अंदर चले जाएगा, शायद 50 में। लेकिन मैं कर रही थी 25-30 साल था हमारा शादी बनाना, बच्चा के रेडी, बच्चा बड़ा करना, ऐसा 65 साल ऐसा चले जाएगा। बुद्धि कब करेगा? बुद्धि करने का हमारा टाइम नहीं है। इसलिए बोला इस टोली का जो मानव है, मंद बुद्धि संबंध, हमारे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि बहुत कमती है। हम सुबह क्या जो खाएंगे शाम को भूल जाएगा। तो मेरा जो असली जो कार्य है ये करना चाहिए। कि जो चैतन्य महाप्रभु बोला यही कार्य है। कृष्ण भक्ति जनता बोला ना, जो कुछ है हमारा मन दहन सब कुछ कृष्ण का ऊपर रखना है। कृष्ण कितना बार ज्ञान दिया, कितना बार ज्ञान दिया अर्जुन क्यों? मेरा नमस्कार करो, मेरा तो पूजा करो, मेरा बचाओ, मेरा तो बेहतर और कोई नहीं है। ऐसा भी बोला तुम देव देवी से पूजा करोगे तो तुम देवलोक में जाना है, पिता माता से पूजा करोगे तो तुम पितृलोक में जाना है, और मेरा पूजा करोगे तो तुम मेरा धाम में आना है। तो वो क्या है? हम क्या नहीं करते? बोला समय अहम सर्वभूतेषु न मदिषु हस्तिना प्रिय जे भजन्ति तेम वर्त मोहि तेतेषु स अपि अहम। बोलता मैं सबके लिए समान है, सबके लिए है अर्जुन, मैं सबके लिए समान है, किसी का ऊपर मेरा विद्वेष नहीं हूं। भगवान सबका समान है। जो हम छू रहेगा वो भी मेरा लिए समान, जो साधु होगा वो भी भगवान का है, समान है। क्यों? जैसे एक घर का बाबा के पास बैठा होता है, एक बेटा ने सिर्फ गलत काम कर रहे, तो बाप क्या उसको तेज करेगा? बाप का बेटा है ना, समझाएगा। लेकिन बोला भगवान बोला लेकिन जे भजन्ति माम तेमे भक्त मोहि तेतेषु स अपि अहम। अर्थात जो मेरा तो भजन करता है, जो मेरा तो भजना करता है, वो मेरा प्रिय है और मेरा पे अवस्थान करता है और मैं उनके हृदय में रहता है। भगवान बोला जे भजन्ति माम तेमे भक्त, जो मेरा जो भजन करेगा मैं वो अमर अवस्थान करता है और हम उनके हृदय में रहता है। भगवान बोला जैसे हमारा जो घर में 5 बेटा, बाप का घर में 5 बेटा होता है, एक बेटा गलत करेगा लेकिन वो बाप का प्रिय नहीं होता है। बेटा है वैसी क्या नहीं करेगा, हमारा बेटा नहीं है, बोल सकता नहीं। लेकिन जो बाप का बात सुनेगा, जो पिता माता का बात सुनेगा, वो सबसे क्या होता है? प्रिय होता है। ऐसा है ना? अभी जैसे ज्यादा से ज्यादा बाबा बन गया, तो बाबा है, माँ भी है, माँ क्या चाहता है बाबा का पास? बच्चा तो क्या चाहता है? तुम मेरा जो दान चाहता है? नहीं, क्या चाहता है? एक बाबा अच्छा बेटा बनो, अच्छा कार्य करो, है? तो जो गलत नहीं करेगा, आशा सुना इनाम मिलेगा, तो बाप खुश हो, माँ और बाप खुश होता है। उनके धन से नहीं है ये चाहते। तो भगवान भी ऐसा ही है। हम भगवान से आए, भगवान बोलो ना मेरा से आया,
माँ अंश, माँ बोला भगवान ना, हम भगवान से अंश है, हम भगवान से अंश है, हम भगवान से आए, लेकिन हम फंसा हुआ है। जो कामना वासना में चाहे इष्ट मत चाहे इंद्रिय काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य, इसमें हम फंसा हुआ है। इसलिए हमसे इधर निकलना चाहिए, तो हम साई भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम भक्ति नहीं करेगा, उधर इधर भागेगा, तो फायदे नहीं है। भगवत गीता में भागवतम प्रथम अध्याय में बोल दिया, वो तो सिद्धांत शब्द बोला ये चीटिंग है, चीटिंग धर्म है, ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए, डुप्लिसिटी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में है वो हमको आचार करना चाहिए, वो ऐसा हमको शिक्षा देना चाहिए। ये गलत है, हम जो शास्त्रों में बड़ा वो करना चाहिए। तो ये ज्ञान हम किससे मिलेगा? तद विद्धि पुण्य पाते नम, जो तत्व विद्धि जानता है ऐसा सदगुरु के पास जाके हमको आश्रय लेना चाहिए। तब हम सदगुरु का आश्रय लेंगे तो तब मेरा को वो ज्ञान मिलेगा। अच्छा सदगुरु के पास नहीं जाएगा, हमारा असत ज्ञान मिलेगा। हम जो भी है तो मतलब मन में जाएगा वो भी करेंगे, मंदिर में राजेंगे, मतलब यहाँ क्या बोलता है इसको, दारू भी पियेंगे, दूध भी पियेंगे, मतलब में बोलता है मौत और दूध। तो हम ऐसा कर रहे, दारू भी पी रहे, दूध भी पी रहे, पता नहीं हो रहा मेरा तो मैं कौन सा असली कौन सा नकली है, कौन सा करना चाहिए। मैं ऐसा कर रहे, मैं एकादशी भी रख रहे, जॉब भी कर रहे, लेकिन दारू भी पी रहे, मतलब तो हमारा कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। सदगुरु का आश्रय नहीं लेगा समय बाबा ही केवल हमारा टाइम जाएगा, हमारा जीरो है। हम एग्जाम देंगे लेकिन फल अंडा मिलेगा, घोड़ा का अंडा, ऐसा होगा, हमारा जीरो होगा, है नहीं। तो इसलिए हमारा जो मनुष्य शरीर मिला हमको यह करना चाहिए, मेरा जो शरीर मनुष्य शरीर मिला, हमारा नेक्स्ट जो शरीर मिलेगा तो गारंटी नहीं है, हमारा नेक्स्ट वो गारंटी नहीं है जो दोबारा आएंगे। क्योंकि कर्म जब कर्म करेंगे उसी कर्म से मेरा तो फल हमको मिलेगा, हमको भोग करना पड़ेगा। तो पहले बोल दिया ना, जिनका लिए चोरी करेगा और भी चोर होता है, जिस घर चोरी किया वो भी चोर है। बाद में क्या करता है? जेल में उनको ले जाता है, उनको सजा होता है। ये जो जड़ जगत है ये भी एक जेल है, भगवान का एक जेल है। हम कर्म फल से हमारा सजा मिला जाता है, लेते दिए भगवान, हमको नरक गाँव में होना पड़ता है। हम भरण पोषण करने के लिए हम नरक गाँव में होना पड़ता है, तो हम नरक में जाएंगे। तो कलयुग में इसको मंदबुद्धि सुमंद बढ़ते तो मालूम नहीं है, कोई ना कोई किसी ने सेवा करता है, किसी ने देश से सेवा कर रहे, किसी घर में सेवा कर रहे, अभी किसी ने कुत्ता के सेवा भी कर रहे। तो विदेशी माता जी को वो भी है इसमें देखता है ना, और कुत्तों के सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको लाभ क्या होगा उनको पता नहीं है। तो इधर से बहुत बड़ा कि हम तो किसको सेवा करना चाहिए? हमारा सेवा करना चाहिए किसको? भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को सेवा करना चाहिए, और किसी को कोई सेवा नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा लाइफ वही होता, पता नहीं होता ना, फायदे नहीं है। तो इसलिए सबको चाहिए तो कृष्ण भक्ति करो। अभी इतना आसान है, भोग इतना कृपा से भोग इतना अच्छा अच्छा भोग लेगा तो सारा दुनिया में अभी कृष्ण भावना में कितना कैसे भक्त लोग प्रचार हो रहे। देखिए आप लोग, अभी सबका हाथ हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, नेट है, फास्ट है, पूरा दुनिया में अभी देखो हमारा सनातन धर्म कितना प्रचार हो रहे। तो हमको भी ग्रहण करना चाहिए, हम इधर इधर भटकना नहीं चाहिए। इधर भागेगा तो फायदे नहीं है, जब मतलब जब समझ में आएगा, लेकिन तब मेरा के ऊपर कोई टाइम नहीं रहेगा, जुड़ नहीं रहेगा करना के लिए। हरे कृष्णा। इस वाले बहुत सारा टाइम ले लिया, अरे मेरा बात में किसी ने दिल में लाजा तो मेरा तो क्षमा करना। इस वाले मेरा से मैं कुछ नहीं बोला, जो शास्त्रों में है इससे बोला। कृष्ण भगवान हर टाइम क्लास मीटिंग सब कुछ कर रहे, इससे हालत नहीं हुई। हम लोगों का थोड़ा मतलब गलत आएगा, मंदिर में नहीं आता है, बच्चे विषय में ऐड नहीं होता है, सही है, मन भी थोड़ा परेशानी होगा, वो भी हम नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु महाराज से हम लोग शिक्षा दे रहे, तो हम प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज इतना हालत में भी अभी जैसे
प्रचार कर रहे हैं, जैसा हम लोगों का तरह पतित को उद्धार कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा से ज्यादा पतित को उद्धार कर सके, इसलिए प्रभात मिशन को और भी आगे लेके जा सके। हमारा इसका समस्त दो सबका शामिल सुस्वागत है। भगवान के पास 3 बार प्रेम से विष्णु का पाठ करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। আমার রাধারমণ নামে প্রভুর নাম প্রভু নিত্যানন্দ পুরী শ্রদ্ধা করে জগন্নাথ পুরী ভক্তি করে চৈতন্য পুরী আমরা চার ঘন্টা আচার্য ভক্তি আচার্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা है। तो जिन समस्त भक्तबृंद मौलिक यहाँ हमारा नवद प्रभु भगवत गीता की विनती के लिए अच्छा से भक्ति कर सके, कृष्ण भगवान में हमेशा रह सके, जो आने वाला है आने की कोशिश करेगा अच्छा से आ सके। तो किसी को प्रार्थना है आह्वान करें, किसी के मैरिज डे बर्थडे किसी के कॉल है हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार में आप लोग बोल सकता है, हम भगवान के चरण में प्रार्थना करेंगे। हाँ बोल अरे ईश्वर को प्रभाव पूर्व ने मेडिकल दिया हरि बोल। हमारा जो विप्लव प्रभु का काका ससुर है, तो उनका अपहरण से उनका लाश मिला, तो लाश इसके लिए मालूम नहीं भगवान का इच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे उनका आत्मा का सद्गति हो, तो प्रभात प्रभु का जो अभिषेक आज भेज दी जाएगा कर दीजिए। प्रार्थना करेंगे प्रभु का अभी बहुत भक्ति में अच्छा अच्छा आगे बढ़ रहे ऐसा तो मेरे नाम से। तो प्रभु का अभी इधर पीछे लाठी के इधर नफरी है तो भक्ति है, नफरी नहीं है इधर भक्ति नहीं है। आप लोगों को दर्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा, मेडिकल हो गया तो हो जाए। हरि बोल। तो आशा से प्रभु के पीछे लाए थे ईश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, दिल से आप भी प्रार्थना करिए, जो आप दिल से क्या करना सेवा करना और भक्ति करना, ठीक है। हरि बोल। तो हमारा जो सुनील प्रभु अनिल प्रभु का चुनाव आया, सुनील प्रभु का अभी विजिट में आया, तो प्रभु का अच्छा कोई नौकरी मिल जाएगा लेकिन कुछ भक्ति कर सके। मेडिकल मेडिकल का दिया बांग्ला तो हमारा जो विषय है विश्वजीत प्रभु का अभी रिपोर्ट नहीं आ रहे, तो प्रार्थना करेंगे जो आ जाएगी विश्ववती दल से, ठीक है। और किरण प्रभु का किशन प्रभु काल मोहल्ला जा रहे, तो प्रभु मोहल्ला जाके अच्छा से भक्ति कर सके, ऐसा भक्त संघ में जुड़ा हो सके। तो इधर पहला बार कोई आया ऐसा तो लगता है, आज पहला बार आया, फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जोगिंदर प्रभु इंडिया का। अरे शुक्र जोगिंदर प्रभु पहले बार आया, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमेशा आ सके सब करिए। आप 3 बार प्रेम से विष्णु का प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सोचना है कि अगर आप लोगों के पास किसी के पास छोटा छोटा बुक गीता माला ने हमारे पास उधर है, आप लेके जा सकता।